That was with Kumar Sanu Saab. Then we come to our debate section where we have Ali Daruwala Saab, Bharat Singh ji, Mukesh Gandhi ji waiting for us. As we say in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We have in our studios today esteemed guest Ali Daruwala Saab from the BJP. Daruwala Saab, welcome to the show. Namaskar. We have Mukesh Gandhi Saab Good from evening, the... Pradeep sir. Yes, sir. Thank you so much. Mukesh Gandhi Saab from the Ajit Pawar NCP. Mukesh Gandhi Saab, welcome to the show, sir. Welcome to the show. Namaskar. And we have Bharat Singh ji. Yes, we'll be shortly joined by Bharat Singh ji from the Indian National Congress. Daruwala Saab, Modi Saab ne aaj kaha, he's away in Brunei, but before going, he said, Shashakt Kisan, Shashakt Bharat, Saath Yojana, sanctioned around 14,500 crores किसानों को सशक्त करने के लिए विकसित भारत के सपने लेकर. तो how do you see किसान सशक्त तो भारत सशक्त? He is not, मोदी साहब कोई अपॉर्चुनिटी, he says no opportunity. 4 करोड़ घर हमने दे दिया, जो होमलेस थे, जो बेघर थे, उनको घर दिया. तो how do you see मोदी साहब? And in spite of doing all this, apology करने के बाद भी महाराष्ट्र में MVA ठंडा नहीं है. MVA wants CM, Deputy CM resignation. दारूवाला साहब. Pradeep sir, good evening, and so happy I'm on the debate on your prestigious channel. And firstly, you would not say, but I'd like to all your viewers to understand that we have crossed 28 lakh viewers Yes, on this show that we have been doing. बिल्कुल sir. Over here, the thing that you have been doing and so persistently you have been doing, through you, I would like to inform the people that the 14,500 crores given to the farmers across the country is not on the paper. It is started rolling out. You may have realized that last 1 week I was not available on the debate. The very fact I was not available on the debate is I am going to the bank, and each bank, even a small branch, has registered 60,000 to 65,000 Bahen who have registered to get the benefits of 1,500 rupees per month, and for the first month already 3,000 has got into the account. So this is what we mean. The triple engine ki sarkar, Ajit Pawar sir, Eknath Shinde ji and our Devendra Fadnavis sir are very serious in Maharashtra. And regarding the farmers, the yojana that they have got, Ajit Pawar is the son of the soil, he is the farmer's son. Eknath Shinde ji is farmer's son. He is, addition to that, a proper hardcore Maratha, where the Mali, the Maratha, the Kundi and the other caste are following him relentlessly in Maharashtra. And over here, what we are seeing is just a trailer of the movie that is going to be rolled out in November and December. For the Lok Sabha, you will see it drilling into votes. All this is going to convert into votes, and you and me will witness on this show. Yeah, the party made some mistakes. Honorable Prime Minister has asked, हाथ जोड़ के माफी मांगी है, मगर शिवाजी की अपने आप को महाराज शिवाजी महाराज की औलाद कहने वाले आज एक ऐसे सिचुएशन का एक वो लोग भांडवल एक पॉलिटिसाइज कर रहे हैं. This shows how fake they are. What narratives these people have done. उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी को हमने आज बाला साहेब ठाकरे जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने तो माफ कर दिया. उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो उनका स्टैंड बदली करा है, उसकी सजा महाराष्ट्र की जनता जनार्दन आने वाले दिनों में बाला साहेब ठाकरे के पुत्र, बाला साहेब ठाकरे के जो पुत्र है, जो उन्होंने ये जो विश्वासघात मतदार के साथ किया है, शिव प्रेम भक्तों के साथ किया है, उन्हें उनकी सजा बिल्कुल प्रदीप जी मिलके रहेंगी. मुकेश गांधी साहब, आपने देखा अजित पवार जी जिस प्रकार से एक मोदी साहब है और सेंटर में काम कर रहे हैं, यहां पर महायुति है, सब पार्टी मिला के सरकार चला रही है. अजित पवार जी का एक जबरदस्त तरीके से जन सम्मान यात्रा आज बारामती पहुंचे. वहां पर लोग जबरदस्त तरीके से उनके स्कीम्स को वेलकम कर दिया. जो लाड़की बहन स्कीम है, गुलाबी रिक्शा वाली स्कीम है, अलग अलग स्कीम,
और बार बार अजित पवार जी को इनको बोलना पड़ता है कि आपके जो बेनिफिट के लिए, गरीब कल्याण स्कीम्स के लिए अजित पवार जी बोल रहा हूं, कोई फंड की कमी नहीं है, फिर भी आलोचना सुप्रिया सुले जी हो, नाना पाटोले जी हो, विजय टिवार जी, हाउ डू यू सी दिस? एक तो सफल यात्रा और दूसरे आलोचना ऑपोजिशन के, इंक्लूडिंग सुप्रिया सुले जी। मुकेश गांधी साहब। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। हाँ, आज आप हैंडसम लग रहे हो भैया। आपकी रनिंग रेस का हमने फोटो देखा एंड यू आर कीपिंग योरसेल्फ यंग एंड इंस्पायरिंग फॉर अस टू बी यंग। यू ग्रो यंग। दारूवाला साहब लुक्स लाइक अ हॉलीवुड स्टार। बजय साहब हमेशा तारीफ करते रहते हैं उनका, आप भी हमेशा एकदम आपका जबरदस्त है। वी आर इंस्पायर्ड बाय यू बोथ। अच्छा देखिए, अभी अजीत पवार के टॉपिक पे आ जाए। हाँ हाँ, अजीत दादा पवार की आज जो जन सम्मान यात्रा जो है, जो महाराष्ट्र में अभी जो चल रही है, उसको इतना ट्रिमेंडस रिस्पांस मिल रहा है, ये देख के सारी महाविकास आघाड़ी की पार्टियों के पेट में दुख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवाजी महाराज के स्टेच्यू का जो इश्यू हो गया, उनके लिए हमारे तीनों नेताओं ने, शिंदे जी ने, फडणवीस जी ने और अजीत दादा जी ने माफी मांगी है, 100 बार माफी मांगी है। और उनके बाद आगे जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने भी माफी मांगी, पर फिर भी इनके अंदर इतना लो लेवल का राजकारण, आज हम कहेंगे वो राजकारण उनके अंदर प्रवेश गया कि आज मुझे तो इस बात का दुख हुआ कि जोड़ा मारने का, जोड़ो मारो, ये जो अभियान इन्होंने किया और जाकर के वो भी शिवाजी महाराज के स्टेच्यू के नीचे। मुझे इतना घिनौनी बात लगती है ये कि शिवाजी महाराज जो भी थे, जो काम करते थे, वो सच्चाई से काम करते थे, लोगों के अंदर एक भावना तैयार करते थे। पर आज उनके स्टेच्यू के पास जाकर के इन्होंने अजीत पवार के ऊपर, जब सुप्रिया सुले और शरद पवार ने, एक बहन ने अपने भाई के चेहरे पे चंपल मार लगाई और एक काका ने, एक चाचा ने अपने भतीजे के ऊपर चंपल मारी, तो ये बहुत बड़ी शर्मजनक घटना हमारे महाराष्ट्र में बनी है। आज तक महाराष्ट्र का राजकारण इतने लो लेवल पे नहीं आया था। एक बहन अपने भाई को, एक विरोध होने के कारण, पार्टी का अलग अलग बंटवारा होने के बावजूद वो जाकर के अपने भाई को चंपल मारे, और शरद पवार जैसे नेता भी उनको चंपल मारे, उनको सपोर्ट दें और उद्धव ठाकरे गेट आउट करके कहने का ऐलान कर दे। ये बात बहुत खतरनाक हुई है। इसका रिएक्शन लोगों के अंदर बहुत खराब आया है। अगर ये उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, सुप्रिया जी और नाना पटोले ऐसा समझ रहे हैं कि हमने ये करके बहुत बड़ा जागृति अभियान कर दिया है, तो वो अपने भ्रम में रहते हैं। ये जो अभियान किया है, इन्होंने बहुत गलत किया है। आपको विरोध है, विरोध न करो उसका, उसके सामने आप काले झंडे फरकाओ, आप दो स्टेटमेंट दो, पर जोड़ों से आप नेताओं को इस तरह से मारने का ये जो पहला अभियान जो ये महाविकास आघाड़ी ने किया है, वो खुद ने अपनी जमीन को खो दिया है महाराष्ट्र में से, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। दारूवाला साहब, आप आरएसएस से कनेक्टेड हो, आप आरएसएस से बहुत गहराई से कनेक्टेड हो, वेरी डीपली कनेक्टेड विद आरएसएस। राहुल गांधी जी कांग्रेस जो आरोप लगा रहे आरएसएस पे, आरएसएस इज अगेंस्ट जाति जनगणना, आरएसएस जाति जनगणना के खिलाफ है। भरत सिंह जी, वेलकम टू द शो। आई कैन सी शायद हॉस्पिटल में थे, अभी एडमिट हो गए थे। भरत सिंह जी, तबीयत कैसा, ठीक है आपका? ठीक है, बट बहुत अच्छा नहीं, ठीक है। बट बिकॉज यहाँ पर दारूवाला साहब है, एग्रेसिव है, मुकेश गांधी साहब भी बहुत एग्रेसिव है। तो मैं पहले दारूवाला साहब से पूछता हूं, दारूवाला साहब आरएसएस से जुड़ा हुआ है, एब्सोल्युटली जुड़ा हुआ है, इंद्रेश कुमार जी और पूरे ग्रुप्स और अलग अलग, मगर जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगा दिया आरएसएस पर कि आरएसएस जाति जनगणना के खिलाफ है, नाउ दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम राहुल गांधी जी एंड कांग्रेस। क्या दारूवाला साहब आरएसएस जाति जनगणना के खिलाफ है? Firstly, I welcome my partner from the Indian National Congress, and I'm so I understand the fun and I get a message from you
that I should be little easy on our friend because नहीं, he's just been वो discharged. खुद ही बहुत Anyway, aggressive है भरत सिंह I've जी। got nothing against him, and his party and his ideology is total waste of time. Anyway, setting the record right, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो विचारधारा on जाति जनगणना, I would like to clarify, and I'd like to clarify in a very short and simple sentence. Today, there is a statement by our national spokesperson for RSS, जाति जनगणना बेशक होना चाहिए, जो राहुल गांधी जी की मांग है उसे हमने सपोर्ट किया। मगर सपोर्ट क्यों किया? जाति जनगणना, कास्ट सेंसस, जाति से हमें मालूम पड़ेगा कौन से लोग कितने पैमाने पे है, और वो हिसाब से उनको जो नेशनल बेनिफिट्स है besides the national treasure, what needs to be given to them by way of the government, what you call the money that comes in, has to be given to the people on the basis of their caste and the work that they do. तो उसके लिए वो बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए अगर हम कास्ट सेंसस करते हैं, जाति जनगणना करते हैं, तो हमें पता चलेगा, नॉट फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट, फॉर सोशल बेनिफिट इट हैज टू बी डन, एंड इट हैज बीन डिमांडेड बाय ऑनरेबल इंद्रेश कुमार जी। उन्होंने कहा था पिछड़े हुए जाति के लोगों को ये मान सम्मान मिलना चाहिए, मेन प्रवाह में उनको लाना चाहिए। बेशक अगर जाति जनगणना से हमें उनकी संख्या अगर मालूम पड़ती है तो उन्हें ये बेनिफिट्स के लिए हमें आसानी होगी, ना कि उन्हें कोई पॉलिटिकल बेनिफिट मिलने के लिए हम ये मांग कर रहे हैं। चुनावी हथियार नहीं बनना चाहिए। भरत सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। मुकेश गांधी साहब, अपार्ट फ्रॉम एनसीपी, अजित पवार जी इज अ गांधीयन। उन्होंने अपने पूरे जिंदगी गांधीयन वैल्यूज, गांधीयन सिस्टम, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए आरएसएस के टच में। तो मुकेश गांधी साहब, आरएसएस क्लियर है कि आप जाति जनगणना करो मगर इसको चुनावी हथियार मत बनाओ, मगर कांग्रेस का आरोप है कि आरएसएस जाति जनगणना के खिलाफ है। मुकेश गांधी साहब, फिर मैं भरत सिंह जी के पास जाऊंगा। आज मैंने टीवी में और सब न्यूज चैनलों में देखा कि आरएसएस जाति जनगणना के फेवर में है, तब मुझे ये उनको पूछना ये है, दारूवाला जी को और आरएसएस के लोगों को, कि आप जैसे हिंदू की जातिगत जनगणना कराएंगे कि मुसलमान और क्रिश्चियनों की भी कराएंगे? क्योंकि मुसलमान और क्रिश्चियन में भी बहुत जनजातियां हैं। आप गोवा में जाओ तो गोवा में वहां क्रिश्चियनों में इतनी अलग अलग जाति है, और वो अलग अलग जातियां वहां जाके वहां के अलग अलग देवियों की पूजा करने के लिए भी जाती है। वैसे ही हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों में, हमारे क्रिश्चियन भाइयों में, समाज में इतनी जातियां हैं। तो ये सारी जनजातियों की जो गणना होगी वो सिर्फ हिंदू में होगी या मुसलमान, क्रिश्चियन और सारे जो जितने भी धर्म के लोग हैं, पंथ के लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, उसमें होगी? मुझे तो ये लगता है कि आरएसएस ने ये हमारी 240 सीट आ गई, बीजेपी की माने एनडीए की पावर कम हो गई, इनसे डर करके तो ये अनाउंसमेंट नहीं किया है ना। क्योंकि ये जातीय जनगणना का विरोध पहले से आरएसएस करती थी, और आज सडनली उनकी चिंतन शिविर में ये टॉपिक जो वापस उनकी जनगणना की फेवर में आया, तो ये राजनीति है, ये कोई धर्म नीति है या कोई आपद धर्म है? इसके बारे में इनको भी क्लेरिफिकेशन आरएसएस को करना चाहिए। क्योंकि आरएसएस का कम्युनिकेशन जितना होना चाहिए समाज के लोगों के साथ में चैनलों के ऊपर, वो बहुत कम है। और आरएसएस के बारे में, उनके कार्य के बारे में, उनकी एक्टिविटी के बारे में लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन खड़े रहते हैं। और मैं एज ए पर्सनल में अगर मुझे कहो तो मैं ये जाति जनगणना के विरोध में हूँ। हमारी पार्टी जाति जनगणना के फेवर में है, पर मुझे ये लगता है कि अगर ये जाति जनगणना हो गई तो हमारे हिंदुस्तान में आगे जाकर के अगले 3-4 सालों के बाद ये जब अनाउंसमेंट हो जाएगी जनजातियों का, तो बहुत बड़ा विस्फोटक वातावरण खड़ा होगा। आज एक मराठा आरक्षण आपको सोने नहीं देता है, जाट आरक्षण सोने नहीं देता है, फिर बाद में छोटी छोटी जनजातियों का संगठन खड़ा आएगा, वो अपने हक मांगेंगे, वो उसका हक मांगेगा, और इससे सबसे ज्यादा हमारे हिंदू समाज को, सनातनी धर्म को मानने वाले लोगों में डिवीजन हो जाएगा।
तो ये जाति जनगणना न हो उसके पक्ष में मैं हूं। You know, Daruvala sir, you want to answer before I go to Bharat Singh ji? उन्होंने Yeah, I'm totally- because I आप बीजेपी totally स्पोक्सपर्सन हो दारूवाला साहब, आरएसएस के साथ जुड़े हुए हो, आप कुछ Correct. स्टेटमेंट, फिर मैं भरत सिंह जी के पास जाऊंगा। Yeah. I'd like to answer to that, and I'd like to answer straight from my heart. और डंके के चोट पे मैं कहना चाहता हूँ, गांधी सर ने जो कहा वो उनका पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप मुझे पूछते हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन भी ये कास्ट सेंसस रिजर्वेशन के खिलाफ मैं हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे पार्टी का या मेरे संघ का नहीं। आप प्रदीप जी जानते हैं, जब जब हमारा ये रिजर्वेशन के ऊपर जब बात हुई है, मैंने मेरा स्टैंड क्लियर किया। एनीवे, संघ का जो एक विचार है, माननीय इंद्रेश जी के शाखा से मैं आता हूँ। जब मैं गुरुजी से बात किया तो उन्होंने कहा क्या बेशक पिछड़े हुए जाति को बेशक यहाँ पे सरकार का सहयोग मिलना चाहिए। इंडिया के अंदर माननीय मोदी जी को अगर आप पूछेंगे तो सिर्फ दो जाति है, एक है हैव एंड द हैव नॉट, एक है अमीर और एक है गरीब, और ये गरीब की सरकार है। हम लोग गरीब के लिए काम कर रहे बेशक, मगर जैसे कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों में, हिंदुओं में, क्रिश्चियन में बहुत छोटे छोटे बाई सेक्स है, उसके अंदर इफ यू सी द सेक्स आर डिवाइडेड। मुसलमान में अत्तार है, बागवान है, पिंजारी है। मराठा के अंदर भी आप देखेंगे तो नहीं क्या कश्तिया, वैष्णव भी, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई डोंट मेक एनी मिस्टेक ओवर हियर, बट महाराष्ट्रन लोगों में भी बहुत सारी जाति है। वो जाति के हिसाब से वो ओबीसी के अंदर, जिसके अंदर वो लिस्टेड होते हैं, वैसे मुसलमान भी उसके अंदर लिस्टेड होते हैं। तो बाय इन लार्ज जो है ओबीसी की जो उन्हें बेनिफिट्स है वो अगर उन्हें मिलते हैं तो उसके लिए हम लोग उसका स्वागत करते हैं। मगर जैसा इन्होंने कहा कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, सर ये देश के अंदर SC, ST, EWS ये सेक्शंस को 10 साल रखेंगे, उसके बाद में हम उसको एबॉलिश करेंगे, ऐसा ये संविधान के अंदर एक प्रोविजन बनाया था। मगर 60 इयर्स भी हो गए, अभी भी वो रिजर्वेशन हटा नहीं है। मैं मानता हूँ, ये मेरा, आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, ये मेरा ओपिनियन है, हैव एंड दी हैव नॉट, रिच एंड द पुअर, ये इतना ही होना चाहिए। गरीबों को अपलिफ्ट करने के लिए ये सरकार काम करती है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का भी ओपिनियन पूछेंगे, और ये जो जरांगे पाटिल जी का भी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर ये जो सबजुडिस मैटर है, इसे एक अलग तरीके से जुडिशरी देखती है बेशक, मगर ये देश के अंदर हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कौन से बेसिस पे लड़ा जाता है, जाति के ऊपर टिकट बंटते हैं, इसके इट्स अ वेरी डीप रूटेड। मुझे नहीं लगता क्या गांधी जी और मेरे विचार से ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। नो, वी कम टू भरत सिंह जी। भरत सिंह जी, राहुल गांधी जी क्लियर कट कहा कि आरएसएस जाति जनगणना के खिलाफ है। राहुल गांधी जी का क्या, जितनी संख्या उतना हक मिलना चाहिए, आदिवासी, दलित, पिछड़ा। बोलिए बोलिए भरत सिंह जी। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देखिए नाम्बियार जी, ये मेरा या आपका या किसी का कहना नहीं हो सकता है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है इस देश में जाति जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी रहेगी, हिस्सेदारी रहेगी, उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। तो एक बार जाति जनगणना कराना बहुत जरूरी है, और इसी को बार बार हमारी पार्टी, हमारे नेता राहुल जी हो या खड़गे जी हो, बाकी हमारे जो साथी है वो भी बार बार ये जाति होनी चाहिए। बोलिए बोलिए भरत सिंह जी, बोलिए बोलिए। चैनल पे बैठे हैं, सुनाइए। दारूवाला जी भी हैं, भाजपा के अजीत पवार जी, गुट के भी गांधी जी हैं। गांधी जी हैं। देखिए कितना दोनों के बीचों में, दोनों लोगों के बीच की बातों में अगर असहमति दिख रहा है आपको, तो ये जब असहमति आज अभी इसी चैनल पे आपके माध्यम से पूरा देश देख रहा होगा कि एक पार्टी चाहती है जाति जनगणना, एक चाहती है नहीं। कल तक जो आरएसएस हमेशा ये कहती थी जाति जनगणना नहीं कराना है, आज अगर वो सहमति है, अपना दे रही है कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। यानी राहुल जी या इंडिया गठबंधन, हमारे नेताओं ने जो इतने सालों से लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे थे, आज वो आरएसएस के समझ में आया, वो भाजपा को समझ में आ रहा है कि जाति जनगणना बहुत जरूरी है। मगर क्या भाजपा इसको एक्सेप्ट करती है? क्या
क्या बिहार में जिस तरह से नीतीश बाबू देख लीजिए अपने अपना अलग एक रवैया अपना के रखे हैं, वहां जाति जनगणना की बात नीतीश जी करते हैं, भाजपा नहीं करती है। तो ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो आने वाले समय में भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए ये एक तरह से कांटे की जैसा है, करें क्या नहीं करें। तो भरत लेकिन सिंह जी, हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है, हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है कि हम सरकार में आएंगे, जल्द ही आएंगे, और उसके बाद में अगर ये जाति जनगणना नहीं कराएंगे तो हम कराएंगे। तो ये तो आपने क्लियर कर दिया रिजर्वेशंस के। एक चीज है कि मैं आप वापस महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज के स्टैचू, बिकॉज आप जो जोड़ो यात्रा एमवीए के यात्रा लेके चल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री ने अपोलोजाइज किया तो फिर बार बार आप इशू बोले कि मराठा गौरव की बात है, मराठा प्रतिष्ठा की, ये क्या है? जरूरी है कि इस चीज को, बिकॉज जैसे दारूवाला साहब ने पहले भी कहा, मुकेश गांधी साहब ने, प्रधानमंत्री ने बोल दिया अपोलोजाइज, तो मैटर उधर खत्म होना चाहिए। आप करप्शन बोल रहे, 300 करोड़ का करप्शन है, उजागर करो, ये क्या चल रहा है भरत सिंह जी? नांदियार जी, आपको कुछ शायद याद होगा, अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो दीपक केसरकर इनके मंत्री हैं। उन्होंने किस तरह से शिवाजी महाराज का अपमान किया था, ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, देश जानता है, सारी मीडिया जानती है। क्यों देश के प्रधानमंत्री ने माफी नहीं मांगा? उसके बाद में दो इनके और जो मंत्री हैं, जो इनके नेता हैं, उन्होंने अपमान किया शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी का। तो आखिर बार बार अपमान करना और फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी का आके माफी मांगना क्या दर्शाता है, बताइए मुझे? क्योंकि चुनाव आ गया है। अरे भैया, 2 महीने के बाद तो कर्नाटक के अंदर, प्रदीप जी, कर्नाटक के अंदर अगर जब उनके स्टेच्यू को तोड़ा गया और जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर शिवाजी महाराज के खिलाफ में लिखा हुआ है, और सारे स्टेटमेंट आज तक हमारे यहाँ कभी भी राजीव गांधी से लेकर किसी ने शिवाजी महाराज के बारे में कोई स्पष्ट भूमिका नहीं कही। उन्होंने औरंगजेब की फेवर की, और औरंगजेब के यहाँ जाकर के उद्धव ठाकरे के ने जो विरोध करने वाले थे उन्होंने विरोध किया, पर शिवाजी महाराज का ये नहीं किया। भरत जी, और आज औरंगजेब का नाम निकालने में रोड का, और जो मुस्लिम जो हमारे देश के द्रोही थे उनके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन लेने का काम नहीं किया, रोडों के नाम रख दिए और उनको प्रतिष्ठा देने का काम किया। उनके लिए कांग्रेस ने कभी सॉरी कहा? उद्धव ठाकरे ने कभी उनके लिए कोई 2 शब्द कहे? शरद पवार ने कोई 2 शब्द कहे? अरे आज एक कुदरती नेचुरल कैलिमिटी के कारण अगर ये स्टेच्यू गिर गया है तो इनके लिए बनाने वाली सरकार जो है वो माफी मांग रही है, और वो नेवी का प्रोजेक्ट था, वो सरकार ने बनाया हुआ भी नहीं था। आज नहीं तो आज अटल सेतु चल रहा है कि नहीं? आज इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर ब्रिज हमारे चल रहे हैं कि नहीं? और हमारे हिंदुस्तान में इतना इंटरनेशनल ग्रोथ जो हो रहा है, आज इतने 200 नए एयरपोर्ट बन गए हैं, इतने 300 350 नए रेलवे स्टेशन बन गए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अरे कहीं थोड़ा पानी गिर गया या थोड़ी कुछ बात हो गई तो उसके ऊपर कांग्रेस एक प्रकार का ये शोर मचा देती है, ये गलत है। भरत कुमार जी, कांग्रेस को मांगनी चाहिए। भरत सिंह जी, जोड़ा मारने का उनका कोई कल्चर जो है ना वो बहुत गलत है। पब्लिक उनको जोड़ा मार के निकालने वाली है, कांग्रेस को और महाविकास आघाड़ी को, ये आप लिख के रखना। भरत सिंह जी बोलिए, आपने सुना शिवाजी महाराज, जवाहरलाल नेहरू। देखिए नाम्बियार जी, दारूवाला जी की मुकेश गांधी साहब, अजित पवार जी। अच्छा, मुकेश गांधी जी की स्थिति अब मैं क्या बताऊं। इनकी तो स्थिति ये है कि ना ये ना तीर घाट के रहे ना ये मीर घाट के रहे। इनकी स्थिति ये है कि सरकार इनको पूछ नहीं रही है और कह रही है कि इनको तो मैं देख के हमें उल्टी आती है। चलती नहीं है भैया, हमें देख के उल्टी आती है। एनसीपी के बिना हमारा कोई उद्धार नहीं है। आप समझे, ये पेपर के न्यूज़ के ऊपर आप बात मत करो। आज एनसीपी का, अजित पवार का जो हुआ है, प्रफुल्ल पटेल का जो हुआ है ना साहब, उसका तो तुम्हारे कांग्रेस उल्टी आ रही है का भी नहीं है। आप गांधी जी उल्टी आ रही है, गांधी जी उल्टी आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गांधी जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कभी कह ही नहीं सकता हूँ। लेकिन आपके साथी, आपके पड़ोसी, आपके सहपाठी, आपके साथ में बैठने वाले कहते हैं कि जब मीटिंग होती है
तो कैसे कैसे हम लोग जो है मीटिंग से जब बाहर आते हैं तो हमें उल्टियां आती भैया है। वो कैसे मिनिस्टर आप वहां पे बैठे हो? प्रॉब्लम कैसे आप वहां पे बैठे हो? प्रॉब्लम से उसने जो कहा कैसे बैठे हो वहां पे? इसमें उनको कहा आप और उनके साथ लिख के कैसे रखना बैठे कि हो? उनको फिर से महाराष्ट्र में मिनिस्ट्री भी नहीं आप मिलेगी। उनके साथ एक मिनिस्टर आप कोई उनके आया, ऐसे साथ तो कैसे कांग्रेस में बैठे हो भाई? बोलने वाले कितने लोग बड़ी हैं? बेशर्म बड़ी कांग्रेस बेशर्मी वाली में स्थिति ऐसे है आपकी। कितने बोलने वाले बड़ी लोग हैं? बड़ी बेशर्मी वाली स्थिति है आपकी, बड़ी बेशर्मी वाली कि अरे एक हमारी व्यक्ति कोई आपको बेशर्मी कहता है कि की देख के उल्टी पोजीशन होती है है ही नहीं। और आप फिर भी जितना उसमें आज बने अजीत बने पवार हुए strong बैठे है हो। ना, आखिर उसने ये महाराष्ट्र में लालच आपके किस चीज की पटोले है? और आपके कुर्सी की उद्धव लालच ठाकरे है, नहीं है, पैसे की इतना लालच नहीं है, घोटाले की लालच है कि जेल जाने की लालच है? अरे कोई घोटाला नहीं किया है ये सर। किस चीज की लालच है? अजीत पवार एकदम ट्रांसपेरेंट आदमी है, उसने कोई अरे घोटाला कहाँ? आज देखो, अरे भाई अगर इतना वो घोटालाबाज इतना होता तो ट्रांसपेरेंट जनता इनका स्वीकार नहीं करती आदमी थी। आप है हमारी कि जनसंपर्क उनको यात्रा देख के देखो, उल्टी आती है एक-एक शिवसेना के यात्रा में लोगों को। लोगों का उत्स्फूर्त जो मतलब रिस्पॉन्स आता है, इतना वो अजीत रिस्पॉन्स दादा देख करके कांग्रेस के पटोले इतना के पेट में ट्रांसपेरेंट आदमी तकलीफ हो गई है कि शिवसेना के लोगों को देख के उल्टी आती है। इतना ट्रांसपेरेंट भी ठीक नहीं होता है ना रहना। इतना भी अरे दबाव भैया, में इतना भी दबाव में राजनीति। अभी देखिए छोटू अजीत को दादा एक हमारे साथ मिनिस्टर ने काम बोल किए दिया हैं। उससे, अजीत उसके ऊपर दादा एनालिसिस मत करो। हमारे साथ काम किए हैं। अजीत दादा के नेचर को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मगर इतनी मजबूरी आप चैनल पे बैठ के कम से कम शिवसेना के, मुझे लगा कि शिवसेना के लोगों को 4 बात आप सुनाओगे। आप तो वो बेशर्मी वाली स्थिति हो गई है कि वो जूता भी मार रहे हैं आपको। हम तो सकारात्मक तौर पे एक दिखावे के तौर सर, पर ये तो आप- जोड़ो मारो आंदोलन, आपको तो जूता मारा जा रहा है। आपको तो वो अरे सर, बैठ के मार रहे हैं मारने जूता, वाली आपकी फिर भी कल्चर है। आप एकदम कभी हमारे चुपचाप बैठे हो। हमारे अजीत दादा ने आप वो चुपचाप काम नहीं बैठे हो। किया। ये क्या मजबूरी है गांधी जी? सर, ये तो मजबूरी आप आखिर एक क्या बात है? आप देखिए प्रदीप जी, मुझे बीच में इनको 1 मिनट, मेरे को 1 मिनट दीजिए। हाँ, बोले, बोले, बोले। मैं क्या उनको एक जवाब मजबूरी है? बोले, देता हूं। गांधी जी, ऐसी बोले, क्या बोले। कि मजबूरी है? नारायण राणे ने एक बार उद्धव ऐसी ठाकरे के मजबूरी क्या सामने है? एक स्टेटमेंट दिया तो नारायण राणे को चारों अरे बाजू से मैं- उनके ऊपर मैं- एफआईआर हो गई। अरे और वो भाई, बोले कि मैंने उद्धव ठाकरे का कहा अपमान कि नहीं ऐसी है, मजबूरी क्या है दादा की? ये है, और आप करके प्रवक्ता उद्धव हैं। ठाकरे के ऊपर ये आप अटैक उस किया गया। पार्टी अरे के नारायण राणे प्रवक्ता को हैं। अटैक कर गया आपकी और ऐसी उनको क्या जेल में मजबूरी है कि खाना खाते शिवसेना खाते को आप बैठे आड़े हुए हाथ नहीं ले आदमी को, सकते हैं? एक मिनिस्टर को, सेंट्रल मिनिस्टर को ये कांग्रेस वाले उठा के लेके गए। सर, उनको क्या राइट है? और आज जब इतना जोड़ा मारो आंदोलन किया ना, मैं तो ये कहता हूँ, अरे देवेंद्र हमने तो फडणवीस जोड़ा को मारो आंदोलन कि कर रहे हैं, इनके आपको ऊपर जोड़े मारे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में आपको लगा के सरकार में इनको बैठ जेल के में डालना कुर्सी पे चाहिए बैठ था। के भी जोड़े इनको मार रहे हैं आपके मानवता साथी, है। और आप देवेंद्र कुछ कर नहीं पा फडणवीस जी रहे, ने आप कुछ बोल और नहीं पा हमारे रहे। शिंदे और अजित पवार जी ने सॉफ्ट अप्रोच लिया है और उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं है। नामबिया बाकी जी, इनके ऊपर ये तो चारों बेशर्मी बाजू से की हद हो FIR गई है। मैं दारूवाला साहब मुझे के बाद लगता है दारूवाला साहब कि कुछ बोलना चाहते हैं। अजीत दादा के दारूवाला साथ साहब जो हो रहा है भरत वो हमें बर्दाश्त भरत नहीं सिंह होगा। जी, दारूवाला साहब कुछ बोलना चाहते हैं। दारूवाला साहब बोलिए, गाड़ी बोलिए। को एक गर्मी आ गई है। अली दारूवाला बस साहब, ऑपोजिशन में मुझे ऐसा लग रहा है नामबियार जी कि इनकी पार्टी के प्रवक्ताओं को तकलीफ हो ना हो, लेकिन मुझे तकलीफ है कि अजीत दादा पवार के बारे में इस तरह से वक्तव्य देते हैं। मुझे ये लगता है क्योंकि हमने भी बहुत साल तक अजीत दादा हमारे साथ काम किए हैं, हमारी पार्टी उनके साथ जो है साथ में थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम उनके प्रवक्ता नहीं बोल पाएंगे, दम नहीं है, ताकत नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए कि इस तरह से महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की जनता के सामने किसी भी नेता के बारे में इस तरह से उल्टी होना, उनको देख के घिन आना, ये मुझे लगता है ये कल्चर नहीं है और ये कल्चर नहीं है। अली दारूवाला जी, अली दारूवाला साहब को कुछ बोलना चाहिए था। अजित पवार जी बारामती में थे। अली दारूवाला साहब, अजित पवार जी बारामती में थे। देवेंद्र फडणवीस का बड़प्पन है ये। मुकेश जी, over here. इतना बड़ा तो दारूवाला साहब बोलिए, थोड़ा दारूवाला साहब को सुन जो लेते हैं। साथ में बैठ के उल्टी आती है, घिन आता है, दारूवाला काम साहब कैसे करते हैं और उसके बाद में भी आप कहते हैं बड़कपन है। ये भरत कौन सा सिंह जी, बड़कपन है भाई? भरत सिंह जी, दारूवाला साहब कुछ बोलना चाहते हैं। आपकी बात सुन के उल्टी आ रही है। अभी बंद करो। दारूवाला साहब बोलिए, दारूवाला साहब, दारूवाला साहब बोलिए। What about our Congress gentleman raised the issue? Bharat Singh ji, that Bharat what Singh ji, Tanajee Congress. Sawant said हाँ. about him. I will like to make a statement. The Shiv Sena, where Eknath Shinde ji is heading the party, Yes, yes. in that this particular gentleman, Uday Sawant ji, is known for loose talks. He has Tanajee this Shinde, Tanajee character Shinde. and he has this habit of making loose talks. And I can assure you what he has done, he has realized, and I'm sure I can assure you he may be having a diabetic issue or his blood pressure must have shot that particular Tanajee day. Shinde. He has realized his mistake and he will definitely apologize. Let us not make a mountain out of a mole. It's a very
नॉन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसे बिल्कुल नहीं देना चाहिए. एंड द कंट्री हैज मूव्ड ऑन एंड ओवर द शिवाजी स्टैच्यू, तो शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा का जो साथ ये जो हुआ है, हमारे पंतप्रधान ने, एकनाथ शिंदे जी ने, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार ने उसके बारे में स्टैंड क्लैरिफाई किया है. ये लोग के पास इशू और मुद्दे नहीं है. आज कांग्रेस ये छोटे छोटे इश्यूज जो है, जैसे कहने क्या, ये तानाजी सावंत ने क्या कहा, मिसहैप जो है महाराज के स्टैच्यू के साथ क्या हुआ, ये इसी को लेके चला रहे. जो मेन दारुवाला साहब 300 महाराष्ट्र करोड़, उनका कहना, कांग्रेस का कहना 300 करोड़ का करप्शन है, मराठा गौरव की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज अस्मिता, तो ये 300 करोड़ का क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? मैं तो बिल्कुल इनके सहमत में बात कर रहा हूँ. 300 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए. वो विंड फॉर्स को कैसा मिसकैलकुलेट हुआ इसके ऊपर भी इंक्वायरी होगी. एंड द कल्प्रिट विल बी पनिश्ड, मे बी फ्रॉम द मेन नेवी और फ्रॉम whoever, whatever end. दिस इज नॉट डन. ये तो एक ऊपर वाले की दया है कि स्टैच्यू के नीचे कोई नहीं था और यहाँ पे कोई जीवन हानि नहीं हुई. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू गॉड. Let us talk about the positive side. It will be resurrected. A new statue will be created and it will be better than before. Over here, things do fall. Calamities do happen. उसे इतना पब्लिसाइज करके किसी सरकार के हम राजीनामा नहीं मांगते. इनके वहां पर जो ट्रेन के हादसे हुए, जो हुए, हमने उसके अंदर ट्रेन के हादसे नहीं, यहाँ पे पहला उसका कारण क्या है, यहाँ पे अगर दुर्घटना में किसी की जीवन हानि हुई कि वो देखना है हमें, ना कि किसी का सीट छीन लो, ना किसी के ऊपर आप बुक करो. हाँ, मगर इसके अंदर कोई करप्शन है और इसके अंदर कोई पैसे का अगर कुछ उलाढाल हुआ है और सब स्टैंडर्ड मटेरियल अगर यूज हुआ है, आई कैन अश्योर यू प्रदीप जी, ये 3 इंजन की सरकार उन्हें माफ नहीं करेंगी. भरत सिंह जी, हाँ बोलिए जी, बोलिए, आप सुने दारूवाला साहब को. और गांधी साहब ने एलिगेशन आपने किया कैसा है कि 300 करोड़ का मामला जो है वो तो सब सामने आ गया. जिस व्यक्ति को कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस व्यक्ति को काम दिया गया. फिर इन्होंने जो है नौसेना के ऊपर डाल दिया, जबकि नौसेना हमारी सेना पे हमें फक्र है, हमें गर्व है. नौसेना का क्या लेना देना भाई? नौसेना बनाई थी क्या? उसको बनाने वाला कौन था? सरकार. पीडब्ल्यूडी मंत्री कहां है? उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? आप किसी एक मोहरे को लाके उसके ऊपर एफआईआर करते हो और कहते हो कि हम इंक्वायरी कराएंगे. 75,000-70,000 करोड़ का घोटाला आप ही ने कहा था, हम इंक्वायरी कराएंगे. आगे चिल्ला रहे थे नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री. और उसके बाद क्या हुआ? अजीत दादा आपके पार्टी में चले गए, आपकी पार्टी में चले गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, वो दब गया. तो ये जो जांच है, ये जो जांच है दारूवाला की, तो आपको विश्वास, मेरी बात, अरे भाई मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए. उसके बाद में आप जो बोलना है सुनिए, मैं सुनूंगा और उसका जवाब दूंगा. तो आपके महाराष्ट्र की जनता देख रही है और वो सुनना चाहती है. महाराष्ट्र की जनता देख रही है, वो सुनना चाहती है. और सच्चाई ये है कि 300 करोड़ का जो है वो घोटाला हुआ है. सच्चाई ये है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री उसमें शामिल है. सच्चाई ये है कि पूरी आपकी एमबीए की सरकार उसमें शामिल है. सच्चाई ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का घोर अपमान हुआ है और एक बार नहीं, बार बार हुआ है. आपके मंत्रियों ने, आपके नेताओं ने बार किया है, इसी महाराष्ट्र में किया है. और ये भी सच्चाई है कि अगर सही तरह से इसकी जांच होगी तो सबके सब जेल के अंदर होंगे. ये सच्चाई है. लेकिन आप उससे बचना चाहते हैं, आप उसको गोल गोल घुमाना चाहते हैं और कोई भी राज बाहर नहीं आने देना चाहते. मगर महाराष्ट्र की जनता और महाविकास आघाड़ी, हमारे जितने साथी हमारे साथ हैं, हमारे दल में है, हम कह रहे हैं आपको कि हमारी 2 महीने के बाद सरकार आएगी और इसकी पूरी जांच होगी, इंक्वायरी होगी और दोषियों को जेल में डाला जाएगा. वो बाहर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले को कभी माफ नहीं किया जा सकता है और महाराष्ट्र की जनता कभी इसे माफ नहीं करेगी. भरत सिंह जी, जो गांधी साहब ने आपको 3 प्रश्न पूछा. जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने पूछा महाराज जी के अपमान किए थे छत्रपति जी के. दूसरे उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में शिवाजी स्टैचू, छत्रपति के स्टैचू बुलडोजर से उड़ा दिया था. और तीसरा गांधी साहब ने कहा कि कर्नाटका में भी आपने पूरे स्टैचू को ध्वस्त कर दिया महाराज जी के. तो कांग्रेस ने हमेशा ऐसा काम किया, तो कैसे अब जस्टिफाई, आपका आंदोलन कैसे जस्टिफाई? यहाँ पे एकदम अचानक इन्हें प्यार आ गया है सर.
लेकिन कैसा है, सर, देखिए दूसरी कैसा बात है ना प्रदीप, बिहार मेरे जी, को एक दूसरी बात ये आपको सब ये ये करनी सब अच्छा, है। और एक बात, और एक बात- क्वेश्चन, और ये एक सबसे एक बात करनी एक साथ बोल दो, ये भरत सिंह जी, है एक इनका और एक सुन लो। जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि पाती शिवाजी है महाराज और के भाजपा की आईटी सेल करवाती है। और हम जानते हैं कि हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कितना मान सम्मान है। कांग्रेस पार्टी हो, चाहे हमारे महाराष्ट्र के नेता हो, चाहे देश के नेता हो, सभी उसका मान सम्मान कर रहे हैं और करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से भाजपा ये अपना पाप कांग्रेस के सर पे फोड़ना चाहती है, मढ़ना चाहती है, ये हो सकता है। हम कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर ही नहीं सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अरे कोई सर, कोई कर आपने सकता तो है, उनकी मूर्ति तो को वो ये भाजपा तो कर सकती कुदरती है। कलेक्टिविटी भारतीय जनता से हुआ। पार्टी वो पार्टी और है आपने तो जो बुलडोजर करके वो शिवाजी महाराज की स्टेच्यू गिरा दी। आपके जवाहरलाल नेहरू ने इनका अपमान किया और हमारे वीर सावरकर ये को सब इतनी यातना भुगतनी मनगढ़ंत पड़ी, बातें इतने जो देश के है लिए बलिदान दारूवाला किया। जी, वो वीर ये सावरकर के बारे में जो है ना, आपके राहुल गांधी ये अनाप इसी शनाप तरह से बोलते हैं करते रहेंगे। और उद्धव जब आप ठाकरे उनकी फंसते बगल में हैं, जाकर के जब बैठ आप जाते हैं। किसी शर्म भी आनी चाहिए आप महापुरुष का लोगों को। अपमान करते और हैं, तब दूसरी आप बात ये अपना करना पाप जो है वो कि दूसरे के देखो, सर पे ये मढ़ना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन होगा ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो नीतीश राणे ने बोला है वो सही है कि कहीं नहीं, आपको कोई तो, पार्टी अरे भाई ने कोई आपको तो प्रपंच लगेगा ही। करके, नीतीश ये राणे जानबूझ के नीतीश ये राणे शिवसेना की नीतीश प्रतिमा राणे को इसी महाराष्ट्र गिराने में का रह प्रपंच के तो नहीं किया है। इसी महाराष्ट्र उनका में भी रह के investigation गुंडों होना वाली चाहिए। बात करते मैं हैं, नीतीश राणे को मंदिर support मस्जिद करता में हूं घुस के जो है इसके बारे गोली में। मारने की बात करते हैं। आप उसी पार्टी के नेता और उसी पार्टी के नेता नीतीश राणे है ना, जो मंदिर में मस्जिद में घुस के जो है मारने की हाँ, बात तो करते मारना हैं, ही गोली मार चाहिए। देंगे मैं भी और उसके उसके पक्ष बाद में में हूं। आप लोग जो है मैं भी उनको उसके सपोर्ट पक्ष में देते हो, हूं। उत्साह देते हो। आप हमारे- ये हमारे- गुंडा राज है ना हमारे आपका, उधर ये जब तो हमारे गुंडा ही दो है ना साधुओं पूरी को तरह से, मारा गया, पूरी तरह से तब गुंडा आप ही कहाँ कर रहे हैं थे? ना आप लोग। कांग्रेस तो वाले कहाँ बैठ गए थे? उद्धव ठाकरे क्या कर रहे ने हैं बताइए। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का झंडा पकड़ा और हमारे साधुओं के ऊपर अत्याचार हो गया पालघर में। तो उस वक्त कहाँ गए थे उद्धव ठाकरे? कहाँ गए थे वो? उद्धव अरे इनके से ठाकरे जी को बात भी की है। नंबर 1 का ये मुख्यमंत्री इनका- किसी ने बनाया तो इसी नीतीश देश की राणे- जनता ने बनाया। राणे साहब वो टाइप के आदमी नहीं है। मुख्यमंत्री ये अगर कम्युनिस्ट उद्धव जी को जर्मनी किसी ने करे, बनाया तो इसी कम्युनिस्ट देश की जर्मनी जनता, का इसी काम महाराष्ट्र की तो कांग्रेस जनता ने पूरा कर नंबर रही 1 है। का मुख्यमंत्री और आज बनाया था। उद्धव जब ठाकरे कोरोना उसको काल सपोर्ट में दे रहा है। लोग मारे जा रहे थे और साधुओं की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो उसकी पूरी इंक्वायरी हुई, जांच हुई, जो भी उसमें दोषी था वो जेल में गया। आप लोग के जैसा हम नहीं करते हैं कि जो है बदलापुर में बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है और आप लोग जो इस पर कंट्रोल नहीं करते हैं। का घर तोड़ दिया। बदलापुर देख रहे हैं आप, पूना में फोर्स का जो है अपघात हुआ वो आपने देखा। वर्ली में जो है हीट एम्ब्रेल का मामला आपने देखा। कौन करता है भाई ये? शिवसेना के नेता, एनसीपी के नेता, कौन करता है? भाजपा के नेता। आप लोग के नेता के कार्यकर्ता क्या करते हैं बताइए? एवरीवन आओ पैसा लाओ, बस उसके सिवाय और कोई काम नहीं किए। कंटेनर लोड में पैसा ये तो पूरा महाराष्ट्र ही देखा ना कांग्रेस कि ने कौन कुछ काम पैसा नहीं किया, लाने की सर। बात करता है, कौन आज जो 50 काम खोके एकदम केंद्र होके की सरकार बात ने करता किया है। अजीत पवार जो काम आज कर रहे हैं वो काम करने की आपके अंदर हैसियत भी नहीं है। और आज महाराष्ट्र अरे की जनता अजीत को पता चल गया है पवार की कि किस हैसियत तरह क्या हो से गई है पता है आपको? लाडली बहना योजना अजीत बना पवार की करके हैसियत क्या हो आज गई है लोगों को पता है? पैसा दे रही है गाँव अजीत में। पवार की ये हैसियत हो गई है कि आपको देख के घिन आता है, उल्टी होती है। अजीत पवार की ये अरे हैसियत भैया, हो गई है। उल्टी आप अरे हैसियत की तो क्या बात दवा ले लो करते ना, हो? तो दवा ले लो हैसियत ना। की क्या बात करते हो? तुमको उल्टी हैसियत आदमी क्या दवा अजीत करो। पवार की पता है? आप उसका जिस एक मंत्रिमंडल में टाइम बैठे हो डायलॉग ना, तो मेरे उसमें प्रश्न का आपके जवाब पड़ोसी दो। की शिवसेना आप की तो जवाब आप लोग को नहीं देख देते के हो। उल्टी होती है। ये हैसियत है अजीत बात पवार उल्टी की और बात उल्टी करते हो आप लोग। और कोई डायलॉग है ये बात करते हो, हैसियत दारूवाला की बात साहब, करते हो। दारूवाला साहब, ओ बारामती भैया, में ये अजीत सब पवार बात से करते हो यार, हैसियत की सुप्रिया बात सुले करते हो आप। सुप्रिया सुले ने आरोप लगा दिया अजीत पवार जी। अजीत पवार से सुप्रिया सुले जी ने कहा आप अगर मेहनत कर रहे हो अजीत पवार जी तो इसको बोलने की जरूरत क्या है? सुप्रिया सुले, पुणे में आप हो दारूवाला साहब, पुणे में बगल में हो बारामती के। सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं सवेरे उठता हूं। अजीत पवार बोलते हैं कि सवेरे 6 बजे उठता हूं, दूध वाला भी उठते हैं 6 बजे। उसे क्या ऐसे आलोचना कैसे देखते हो? हाउ डू यू सी दारूवाला साहब? ये अभी प्रदीप जी, ये महाराष्ट्र का राजकारण जो है ना वो बहुत अलग लेवल पे चला गया है। ये छोटी छोटी बातों को टीवी वालों को भी हाईलाइट नहीं करनी चाहिए। मेरी टीवी मीडिया से भी रिक्वेस्ट है, ये हमारी सारी मराठी चैनल है, ऐसे थोड़े थोड़े अंदर के इश्यू जो होते हैं उसको इतना फ्लेयर अप कर देते हैं और मेन इश्यू जो है लोगों के लोगों की एफआईआर रजिस्टर होती है कि नहीं, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं कि नहीं, रोजगारी की तक कैसी है, माड़ा का नया क्या प्रोजेक्ट है, उनके बारे में कोई टीवी चैनल कोई प्रोग्राम दिखाती नहीं है।
सिर्फ छोटी छोटी बात को, सुप्रिया जी ने क्या कहा, अजित पवार ने क्या किया, फडणवीस ने क्या किया, पटोले ने क्या किया, बस। और वो संजय राउत को रोज हाईलाइट करके पूरे दिन भर उनके ऊपर चैनल चलाती रहती है। थक गया है महाराष्ट्र के लोग अभी। ये दारूवाला साहब, मराठी उन्होंने चैनलों को कांग्रेस कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए सर। दारूवाला साहब, कांग्रेस टॉक्ड अबाउट डिले इन फाइलिंग ऑफ एफआईआर इन बदलापुर में डिले हुआ था। आप वुमेन राइट्स के बारे में बात करते हो, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के बात करते हो, हर चीज बात करते हो, बट डिले तो हुआ था मुकेश गांधी साहब, जो भरत सिंह मैंने तो उसको अपोज किया था। मैंने वो डिले इज डेंजरस, डिले नहीं होना चाहिए। आज छोटे छोटे आदमियों की मेरा आज भी कंप्लेंट है। भले फडणवीस जी ने सब अच्छे काम किए, पर हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर एफआईआर जो रजिस्टर होनी चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया में जितना जल्दी न्याय मिलना चाहिए नहीं हो रहा है। वो आम जनता का बहुत बड़ा आक्रोश है सर। इसको कोई समर्थन नहीं दे सकता, कोई मेरी गवर्नमेंट हो या आपकी गवर्नमेंट हो। दारूवाला साहब बोलिए, दारूवाला साहब बोलिए। I would just like to rebut to what the Congress spokesperson has Bharat just Singh ji, said. Congress, Indian that National he Congress. was speaking about the Honorable Maharaj शिवाजी महाराज के बारे में, जो इतना वो प्यार से मोहब्बत से जो उनकी जो तकलीफ में देख रहा था, उसके अंदर मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ। जब तक के देवेंद्र फडणवीस जी ने हाईलाइट नहीं किया था, तो जब भी कोई भी प्रोग्राम शरद पवार जी का होता था, वहाँ पे शिवाजी महाराज का ना तो स्टैच्यू हुआ करता था, ना तो उनका फोटो फ्रेम हुआ करता था। व्हेन देवेंद्र फडणवीस जी ने यहाँ पर इसको हाईलाइट कराया, उसके बाद उनके प्रोग्राम्स के अंदर शिवाजी महाराज का स्टैच्यू और फ्रेम और फोटो रखना उन्होंने शुरू किया। जस्ट फॉर रिकॉर्ड, इफ आवर फ्रेंड मे नॉट बी नोइंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। And as you said, Pradeep ji, about the Badlapur FIR not being done in time or being delayed, over here, let me tell you something. A fast-track court has been established. A special judiciary commission has been established. The culprits will be punished. And I am in the favor of capital punishment, and it should be given, and we should really bat for it. Going across party lines. Hang till death. Yeah, exactly. That's what I'm saying. Going across party lines, no matter, as Gandhi sir ने जो बताया कि यहाँ पर पार्टी को बाजू में रख के कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना, we all should unanimously pass a bill where such crime is made on children. There should be no excuse, no punishment, hang till death, as he said. A capital punishment is the only way people will refrain and be scared of doing such heinous crimes. भरत सिंह जी, वो जो कह रहे हैं मुकेश गांधी साहब, अली दारूवाला साहब बोले कि कांग्रेस अब तक पूरे इंडिपेंडेंस से लेके सबसे ज्यादा आपने रूल किया इस देश को। शरद पवार साहब 83 इयर्स हो गए, मीन्स साल के हैं, पॉलिटिक्स जितना उन्होंने देखा किसी ने नहीं देखा। उन्होंने कभी भी न छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ किया है, न मराठा जो रिजर्वेशंस के बारे में कुछ किया है, न वुमेन राइट्स के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में किया। तो इतने साल आप राज करने के बाद भी आपने कुछ किया नहीं, इनका आरोप है। तो अभी आप ये छोटे छोटे चीज लेके क्यों आप उंगली उठा रहे हो? भरत सिंह जी, पहली बात की जो ये कह रहे हैं, पहली बात की भाजपा के प्रवक्ता हो या एनसीपी अजित दादा गुट के प्रवक्ता हो, जो ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, निराधार आरोप है। इसमें कोई तथ्य ही नहीं। अगर ऐसा होता तो सख्ती अगर महाराष्ट्र में कोई अगर लाया था कानून तो हम ही लाए थे। अभी तक वो क्यों जो है ये इन लोगों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया भाई भाजपा ने इसको पारित करवाने में? एक चीज। दूसरी चीज, जिस तरह से पिछले 10 सालों में 11 सालों में क्राइम महिलाओं के अगेंस्ट बढ़ा है, वो क्या हमारी सरकार के समय था? मान लीजिए अगर मैं कहूँ अरे सुन तो लीजिए महाराज, सुन तो लीजिए। मैं अगर कहूँ आपसे नाम्बियार जी कि हमने कुछ नहीं किया इसलिए तो देश की जनता ने हमें हटा दिया। 10 साल हो गया, 10 साल से हम बाहर हैं। देश की जनता ने जिसे चुना है, इन्हें चुना था ना, भाजपा को चुना। और भाजपा ने क्या किया 10 सालों में? 10 सालों में आज भी ये जो है राहुल गांधी जी के नाम पे रोते हैं, गांधी परिवार के नाम पे रोते हैं, शरद पवार जी के नाम पे रोते हैं। क्यों भाई? आपको रोने के लिए रखा है क्या कि आपको झुंझुना बजाने के लिए सरकार लेकर आए? आपने क्या किया बताइए 10 साल में? 10 साल में आपने सुधार क्यों नहीं दिया? 10 सालों में आपने सुधार क्यों नहीं दिया? सब कुछ सही क्यों नहीं कर दिया?
यानी कि आप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और इसी वजह से महाराष्ट्र में मोदी जी ने जो काम किया है, महाराष्ट्र वो में आपके 17 नामबियाल साल में आपने काम नहीं जी किया, 60 साल ये में। जो है 9 सीट पे आ गए हैं, 9 सीट पे आ गए हैं। जो 45-48 की बात करते थे वो 9 पे औंधे मुंह गिर गए हैं। और उसके बाद आज ये स्थिति हो गई है। देवेंद्र फडणवीस की स्थिति देखिए, बाकी के और स्टेट देवेंद्र कवर हो फडणवीस जाएंगे। की स्थिति देखिए नामबियाल जी, वो कहते क्या है कि हमें तो 100 सीट मिल जाए तो भी बहुत है, हम 100 सीटों पे अब जो है अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अरे 288 में से 100 धर्म की बात करते हैं सीट भैया, की बात कर रहे आप हो। उसको misquote 288 नहीं करोगे आप, 288 सीट नहीं लड़ोगे, 288 सीट पे दावा नहीं करोगे। यानी कि नामबियाल जी पूरी तरह से भाजपा डरी हुई है, भाजपा डरी हुई है। और भाजपा बिल्कुल डरी हुई नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि गांधी जी, मुझे आपके साथ बहुत सहानुभूति है, अजीत दादाजी के साथ बहुत सहानुभूति है। कम से कम हमारे साथ रहते तो इस तरह से बेइज्जती नहीं होना पड़ता, बेइज्जत नहीं होते। हमारे यहाँ पे थे तो दादा की दादागिरी चलती थी, हमारे यहाँ पे थे तो दादा की दादागिरी चलती थी। और वहां पे जाने के बाद सारी दादागिरी धरी की धरी रह गई, सारी दादागिरी धरी की धरी रह गई। इसलिए नामबियाल जी, आपके माध्यम से मैं दादा को ये कहना चाहूंगा कि दादा, आपका जो जगह है वो गलत जगह पे आप चले गए हो। आपको वहां पे कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। अब अगर आपको मान सम्मान चाहिए तो आपको अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा, आपको अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। शिंदे जी सब उनको जो सम्मान दे रहे हैं ना, वो देख के बहुत बढ़िया सम्मान दे रहे हैं नामबियाल जी, नामबियाल जी बहुत बढ़िया सम्मान दे रहे हैं। ताराजी सावंत इतना बढ़िया मान सम्मान दे रहे हैं कि उनको घिन आती है, उनको उल्टी होती है। ये मान सम्मान है, ये मान सम्मान है। एक मंत्री कहता है, एक मंत्री कहता है, इतना मान सम्मान। एक मंत्री कहता है कि मुझे जो है अजीत दादा को देख के घिन आती है, इतनी मान सम्मान। कैसे आप लोग जी रहे हो भाई, कैसे जी रहे हो? अरे कहीं चुल्लू भर पानी अगर कहीं दिख रहा है तो बताना, कहीं चुल्लू भर पानी दिख रहा होगा तो बताना। सबसे घिनौना काम हुआ है, इसका मैं वारंवार निषेध करता हूँ। शरद पवार, दारूवाला साहब, शरद पवार जी ने कहा कि मैं 2 महीने कंटिन्यूस काम करता रहूंगा, चैन के नींद नहीं सोऊंगा जब तक ये महायुति के सरकार में उठा के फेंक नहीं दूंगा और उसको एनडीए के सरकार यहां पर लेके आऊंगा। 225 सीट्स का शरद पवार साहब ने 155 से 225 तक आ गए। दारूवाला साहब, प्रदीप जी मेरा एक ही कहने का है, प्रदीप जी मेरा एक ऐसा कहने का है दारूवाला जी, कि शरद पवार जी को ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए कि आने वाले कल में मैं महाराष्ट्र में ऐसी सरकार बनाने का समर्थन करूंगा कि जो महाराष्ट्र का नवनिर्माण करे, महाराष्ट्र का उद्धार करे। अभी इनको गिराऊंगा और मैं बड़ा बन जाऊंगा, यह भाषा तो बोलते बोलते उन्होंने सालों साल निकाल दिए। और आप लिख के रखना, शरद पवार जी कितना भी प्रयत्न करे पर सरकार बनने वाली है महायुति की, और वो 100% श्योर है। दारूवाला साहब, हाउ डू यू सी शरद पवार्स क्लेम? पवार जी का क्लेम जब कर रहे हैं कि मैं इतना मेहनत करूंगा और तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक सरकार को मैं उठा के फेंक नहीं दूं, नया सरकार, एनडीए का सरकार। हाउ ही इज सो कॉन्फिडेंट? कैसे कॉन्फिडेंस? 100% Sharad Pawar ji is known for his strategy. He has that energy. Hats off, salute to the respected gentleman. But I personally feel if Sharad Pawar ji plays a role of a father, of a leader, where he unites everybody, gets the reservation issue sorted out, the Maratha reservation का जो इतना ज्वलंत प्रश्न है, उसके बाद में फिर मुसलमान लोग, उसके बाद में धनगर लोग, ये जो एक इशू जल रहा है, उनके सीनियरिटी की वजह से अगर जरांगे पाटिल जी ये एजुटेशन को वापस लेते हैं और ये देश के अंदर, ये महाराष्ट्र के अंदर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इफ वी गो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, इफ शरद पवार जी अगर ये यूज करते हैं और वो उनका अगर स्टैंड क्लियर करते हैं कि उनका रिजर्वेशन के बारे में उनका क्या स्टैंड है, ये पॉलिटिक्स करके हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन, इफ ही कैन अवॉइड डूइंग ऑल दिस एंड ही कम्स आउट क्लियर एंड क्लीन and he says that my daughter, my nephew, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे, ये जो यंग लॉबी है, ये लोग अगर साथ मिलके महाराष्ट्र के विकास के लिए, यहाँ पर इनकी जनता जनार्दन के लिए जो 12.5 करोड़ लोग महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाने के लिए अगर काम करते थे तो मैं उनका दोनों हाथों से सलाम करता था।
बाकी मैं ये पलटी कर दूंगा, ये सरकार गिरा दूंगा. This really doesn't suit a man of that stature to speak this language, प्रदीप जी. No, no. प्रदीप जी, मैंने पहले जैसे कहा था ना प्रदीप जी कि महाराष्ट्र को एक जयप्रकाश नारायण की जरूरत है, वो मुझे शरद पवार में दिखता था. पर लास्ट उनके स्टेटमेंट के बाद में मुझे बहुत दुख हुआ कि शरद पवार जी इतने बड़े नेता है, इनके अंदर इतना बड़ा विजन है, इतना स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व है, भगवान ने दिया है उनको महाराष्ट्र के ये जो अभी जो सारे प्रभाव जो नेगेटिव चल रहे हैं वो सबको पॉजिटिव बनाने की उनके अंदर क्षमता है. वो काम अगर शरद पवार जी ने कर दिया होता तो शरद पवार जी की लोग पूजा करते थे. पर दुख की बात है कि शरद पवार जी सिर्फ अपनी पार्टी का और अपने महाविकास आघाड़ी का ही सोचते हैं, पूरे महाराष्ट्र का नहीं सोचते हैं. ये दुख की बात है. भरत सिंह जी, ये देखो गरीब कल्याण स्कीम देखो, सबको लाड़की बहन का पैसा मिलने लगा. भरत सिंह जी, गुलाबी रिक्शा सबको मिलने लगा. फ्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन महिलाओं को, बच्चों को मिलने लगा. अन्नपूर्णा योजना में 3 सिलेंडर मिलने लगा. वो 10 लाख जो बच्चे हैं जिसको स्टाइपेंड 10,000 8,000 वो अभी मिलने जाने वाले. तो क्या भरत सिंह जी, क्या आपको लगता कैसे आप जब कह रहे हैं कि अपने सरकार है, तो ये जो गरीब कल्याण स्कीम्स है, पैसे लोगों को मिलने लगा, तो क्या वोट में नहीं तब्दील हो जाएगा? भरत सिंह जी, देखिए नामबिहार जी, चुनाव आने के 1 महीना पहले अगर कोई स्कीम अगर लाया जाता है तो मुझे लगता है ये जनता की भलाई का स्कीम नहीं है, ये खुद की भलाई का स्कीम है. ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस चुनाव को जीतना नामुमकिन है, तो कैसे भी करके जो है, मैं अगर जनता के बीच में लाके अगर 1500 रुपया देने की बात करूंगा, गैस की बात करूंगा, सिलेंडर की बात करूंगा, तो शायद हो सकता है कुछ इसका भला हो सके. लेकिन आपको पता होगा कि अभी जो चुनाव हुआ, पूरे देश का चुनाव हुआ, उसमें भाजपा ने कितने वादे किए थे, क्या क्या प्रलोभन भी दिया था और कहीं कहीं दिया भी था. उसके बाद में भी भाजपा की स्थिति क्या हुई वो आपने देखा है. मैं ये कहता हूं कि ठीक है, जनता के हित के लिए, अगर जनता के फायदे के लिए कोई स्कीम आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चुनाव को देख के नहीं आनी चाहिए. ये तो आप 5 साल सरकार चलाए, तो आपने ये पहले क्यों नहीं लाया? हमने तो जहां जहां घोषणा की, हमारी जहां जहां सरकार बनी, हमने जो है चुनाव के पहले घोषणा किए और चुनाव के बाद उससे तत्काल प्रभाव से हमारी सरकार बनी, हमने उसको लागू किया और वो चल रही है. तो क्या ये जनता के बीच में भ्रम है? जनता के बीच में भ्रम है नामबिहार जी? क्या ये 1 महीने के बाद बंद हो जाएगी? क्या 2 महीने के बाद बंद हो जाएगी? और चुनाव आयोग पे भी उंगली इसलिए उठेगी क्योंकि अगर चुनाव का समय अगर यहाँ से डिले करके आगे बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र के साथ धोखा है, महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है. और रही बात जो योजनाओं की, तो मुझे लगता है कि ये योजना सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए ये 2 महीने 3 महीने के लिए लाया गया है. बाद में आगे चल के बंद कर देंगे, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम इसे बंद नहीं होने देंगे. हम इससे और बढ़िया और अच्छा से इम्प्लीमेंट करके इसको और आगे बढ़ाएंगे और महाराष्ट्र की जनता के, महाराष्ट्र की बहनों को, भाइयों को इससे ज्यादा सहूलियत कैसे मिले, उनको फायदा कैसे मिले, इस पर आगे बढ़ता रहेगा और युवाओं के अंदर भी एक नई ताकत, नया जोश खड़ा करेगा. ये अजीत पवार का काम है सर. इसको आप जुमला मत समझो. आपकी अजीत पवार जी का नामबिहार जी वो सब बंद हो गई. आपकी सरकार के पास मैं एक सवाल है मेरा, पैसा नहीं है पगार देने के लिए. मेरा एक सवाल है दोनों महानुभावों से नहीं है. और आज मेरा दोनों महानुभावों से एक सवाल है. वो 10 बार फाइनेंस मिनिस्टर महाराष्ट्र के बने हुए. मेरा एक सवाल है दोनों महानुभावों से. बोलिए दारूवाला साहब, सुन रहे हैं, बोलिए. और उसके हिसाब से ये जो बनाई नहीं सुन पाएंगे ना, सुन पाए, वो चुप हो जाएंगे तो मैं बताऊं. ना बोलिए ना. और चलेगी, उसमें बढ़ावा होगा, कम नहीं होगा. इतना आप लिख के रखना मेरे भाई. बोलिए भरत सिंह जी, बोलिए. हाँ भरत सिंह जी, दारूवाला जी देखिए, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है कि दारूवाला जी ये स्कीम किसकी है? ये स्कीम जो है वो देवेंद्र फडणवीस की है, ये स्कीम जो है वो शिंदे की है, या ये स्कीम अजीत पवार की है? तीनों लोगों में होड़ मची है कि ये हमने लाया है, हमने किया है, ये हमने किया है. देखिए, दूसरा क्वेश्चन जरा धैर्य तो रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए. दूसरा मेरा बोलिए फिर दारोगा साहब आंसर करेंगे. बोलिए.
भरत सिंह जी, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, इसका जवाब आप तीनों दारूवाला नेता, साहब जल्दी तीनों, पूछिए ना, जल्दी दो पूछिए। मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री में कौन लाया? दूसरा आप ये 5 साल पहले क्यों नहीं लाए? जब आपकी सरकार बनी तो आप क्यों नहीं लाए? तीसरा सवाल, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप इसको 5 साल चलाएंगे? अरे आप तो जा रहे हैं, गाजे बाजे के साथ में आपकी विदाई होने वाली है। दारूवाला साहब, वो विदाई भी करेंगे हम, और उसके बाद नामियार जी को आपके मिठाई भी खिलाएंगे हम। जाति जनगणना का कार्यक्रम नहीं किया। अरे भाई हम तो कह रहे हैं विदाई भी करेंगे, नामियार जी आपके स्टूडियो में मिठाई भी खिलाएंगे। अच्छा किया है अजीत पवार जी और शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस ने। आपने जो 60 साल के बाद में ये इश्यूओं को खड़ा किया, जो इश्यू आपको सॉल्व करने का था। शरद पवार जी को महाराष्ट्र में अंदर जो मराठा का जो जवाब आप दे दीजिए। दारूवाला साहब बोलिए, आप दारूवाला साहब बोलिए, दारूवाला साहब बोलिए, दारूवाला साहब बोलिए। Yeah. Firstly, what our friend has asked me that ये स्कीम लाइक किसने, ये है किसकी? ये अगर आप फोटो देखते, इसके अंदर हमारी सरकार के अंदर माननीय अजीत पवार जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी सीएम और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, ये सरकार ने ये रोल आउट स्कीम की है सर। और ये स्कीम इज हियर टू स्टे। यहाँ पर ये कोई इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये स्कीम को रोल आउट नहीं किया। जो भी काम बीजेपी करता है, जो कहना है अपने 2 साल 3 साल पहले क्यों नहीं लाई, हम लोग जो कहता है वो करता नहीं है। 15 लाख रुपए हम देंगे, 15 लाख रुपया मिला नहीं। 1 second, let me finish. करप्शन मिटा देंगे, करप्शन वालों को अपनी पार्टी में लेके भर के पूरी पार्टी तैयार कर दी, उससे कुछ हुआ नहीं। आपने जो वादे किए वो सारे वादे झूठे साबित हुए। चाहे वो करप्शन की बात करें, चाहे वो आप जो है 15 लाख की बात करें, चाहे वो जो है युवाओं को नौकरी देने की बात करें, ये सारा जुमला था। और ये जुमला देश की जनता ने देखा, महाराष्ट्र की जनता ने देखा। इसी वजह से आपको भाजपा को 9 सीटों पे पहुंचा दिया। और आज कांग्रेस पार्टी नंबर 1 की पार्टी महाराष्ट्र में है, और आने वाले विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी कांग्रेस पार्टी रहेगी महाराष्ट्र में। दारूवाला साहब को कंप्लीट करो। भूल जाओ। Can I reply back to you? Yes, please, डिसहार्मनी करके आपने सीट जीती है। आपको छोड़ दिया आपके ऊपर कि आप भूल जाओ। हिंदुस्तान में सरकार मुसलमान लोग भी अभी समझ गए हैं कि हमारा उपयोग किया जा रहा है कांग्रेस वाले। अब मुसलमान भाई भी मैं अभी समझ माइनॉरिटी ने मिसयूज हो रहा है। मुफ्त वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया। अली दारूवाला साहब आरएसएस से संबंधित है। मैं धन्यवाद देता हूं माइनॉरिटीज को कि आपने हम पे विश्वास जताया, महाविकास आघाड़ी पे विश्वास जताया। आगे भी 2 महीने के बाद इसी तरह से आपका विश्वास महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी पे बने रहे। दारूवाला साहब बोलिए द फाइनल वर्ड। हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर एक विग्रह खड़ा करके, एक असंतोष खड़ा करके हमारे देश की प्रोग्रेस को, वो तो असंतोष तो आप में भी है दारूवाला जी, वो असंतोष तो आपके अंदर भी धधक रही है, लेकिन क्या करें, आपकी मजबूरी है, आप दिखा नहीं रहे। और एक मुस्लिम जो अच्छी जमात है उनको आप भड़का के हिंदुओं के विरुद्ध में कर रहे हो, सनातनियों के विरुद्ध कर रहे हो, ये गलत है। अरे आप भी एक मुस्लिम है। दारूवाला जी एक क्वेश्चन है, 10 सेकंड 5 सेकंड दे दीजिए मुझे। दारूवाला जी 5 सेकंड। दारूवाला जी को पहले प्रश्न का उत्तर तो दारूवाला जी से एक क्वेश्चन मेरा। दारूवाला जी मेरे इस प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए कि नीतीश राणे ये कहते हैं कि मस्जिदों में घुस के मारूंगा, एक को गोली मारूंगा, ये क्या आप इसको स्वीकार करते हैं क्या? दारूवाला जी आपने सिखों के साथ किया ना, वो आपने सिखों के साथ किया था आपकी कांग्रेस ने। अरे भाई पहले इसका जवाब दीजिए, पहले इसका जवाब दीजिए। आप मुसलमान है ना, सच्चे मुसलमान है ना, आप मुसलमान हैं और सच्चे मुसलमान हैं, तो अगर आपकी पार्टी का एक नेता कहता है कि मस्जिदों में घुस के मारूंगा, गोली मारूंगा, तो क्या ये सही है? क्या इसको जब उन्हें अपने गुरु को बचाने के लिए कोई स्टेटमेंट दिया है? अरे भाई ये आप मानते सही है? नहीं बनाया है। आप सही मानते कैसे? हमारे सिख भाइयों को जाकर के मारा, आप इसे सही मानते हैं क्या? आपका एक नेता आपको कहता है कि आपके घर में घुस के मारूंगा, तो एक वाक्य खाली बोला है, फाइनल वर्ड फ्रॉम दारूवाला साहब बिफोर वी दारूवाला साहब मुकेश गांधी साहब जरा सुनिए, दारूवाला साहब क्या बोल रहे हैं। अली दारूवाला साहब बोलिए, दारूवाला साहब बोलिए।
प्रदीप जी, मैंने इनका सवाल सुना, मैं आज आधे घंटे से इनका सुन रहा हूँ। हाँ, बोलिए, बोलिए। और इनको मैं प्रैग्मेटिकली इनके हर सवाल का 5 मिनट दीजिए मुझे। हाँ, आप प्लीज प्लीज मेहरबानी बोलिए, करके बीच में बोलिए, बात मत बोलिए, करिए। बोलिए, बोलिए। सब में पहले नितेश राणे जी का जो सवाल इन्होंने मुझे पूछा है, बोले अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो ये सवाल का जवाब दीजिए। रामगिरी महाराज के बारे में जो मुसलमानों ने आक्षेप का शब्द यूज किया, उसके बारे में आप यहाँ पे मुसलमान के नेता आप बन के बैठे हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप उसके समर्थन में हो, क्या आप उसके निषेध में हो? ये सवाल आपने पहला देना चाहिए। अगर कोई आदमी अगर यहाँ पे हथियार पहला उठाता है और रामगिरी महाराज जो हमारे हिंदुओं के, जो श्री राम जन्मभूमि के इतने बड़े सिर है, उसके बारे में अगर मुस्लिम कम्युनिटी में से ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट अगर ऐसा आता है, तो आपका स्टेटमेंट उसमें समझा जाए क्या? मुसलमानों के लिए अगर ऐसा स्टेटमेंट अगर आप समर्थन नहीं करते, तो उसके रिटेलिएशन के अंदर नितेश राणे जी ने कहा, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेगा तो नितेश राणे जी का ये बात करने का स्टाइल है। हाँ, अगर उन्होंने कुछ हमारे हुजूर के बारे में कहा होता, 1 सेकंड, लेट मी कितनी फिनिश। मजबूरी है दारूवाला जी, आपकी नहीं, कितनी सुनिए ना, मजबूरी है, बोलने को दो। कितनी मजबूरी है आपकी असोमत दारूवाला जी, नितेश कितनी राणे मजबूरी है आपकी। भरत सिंह जी सुनिए ना, सुनिए भरत सिंह जी ये सुनिए। स्टाइल है। आपने ये प्रश्न समाज पूछा, को सुनिए। मस्जिद के अंदर घुस के मारने की बात भरत करते सिंह जी हैं, और आपने ये प्रश्न स्टाइल पूछा, है। आप सुनिए ना। वो सरतन से जुदा ठीक है क्या? मैं जो भरत सिंह कह जी रहा हूं, पूछ रहे हैं, मैं सरतन से एकदम जुदा ठीक जिम्मेदारी है? के साथ कह रहा हूँ। सरतन अगर से कोई जुदा भी ठीक है, गुनहगार, भरत सिंह वो जी। भले मस्जिद में छुपो या मैं मंदिर में जवाब छुपो, देता हूं। अगर वो गुनहगार है, नादिया 1 जी, सेकंड, लेट मी मैं- फिनिश, लेट मी एक फिनिश, मिनट, स्टॉप द बोलने दो, नॉनसेंस खत्म। बोल रही हो। आप ये जो कर रहे हो ना, ये कांग्रेसी जो चाल है ना, आप जो फुट लगा के ये जो झगड़ा लगाने का, ये जो आप गटर काम कर रहे हो ना, ये आप अभी बंद करिए। अभी आप मेरी बात सुनिए सर। बोलिए, अगर बोलिए, कोई भी दारोगा साहब आरोपी बोलिए। है, भले वो कोई भी जाति का हो, अगर वो मंदिर में छुपता है या मस्जिद में छुपता है, तो उसे निकाल के गोली मारने का ये जो इन्होंने स्टेटमेंट किया ना, इसके मैं समर्थन में हूँ। हाँ, मैं निषेध कौन से बात का करता हूँ वो भी सुन लीजिए सर, आप वो भी सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। अगर नितेश राणे जी हमारे जो आदर स्तंभ है, जो हम मुसलमान जिसकी हम सब में ज्यादा रिस्पेक्ट करते, जो हमारे माँ है, जो हमारे बाप है, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर उसके बारे में अगर कोई स्टेटमेंट करते हैं ना, वो तो मुसलमान छोड़ो, वो तो मैं भी सुन के नहीं लूंगा। ये आप बात डंके के चोट पे सुनिए सर। अरे पॉइंट क्या नंबर बात कर 3, रहे हैं दारूवाला पॉइंट नंबर जी? 3, क्या बात सुनिए करते ना, हैं भरत सिंह जी, दारूवाला पूरा सुनिए ना, आपका सुन रहा था। की बात लेट मी करते हैं, फिनिश। क्या बात अरे करते हैं किधर भी दारूवाला छुपो जी? सर, कितनी वो मजबूरी? भले नहीं क्या कितनी चर्च में मजबूरी? छुपो, उन्हें निकाल के गोली मारेंगे। मजबूरी? अगर उन्होंने लॉ को हाथ में कितनी लिया है मजबूरी? तो उनके, हाँ बिल्कुल, इसमें मजबूरी नहीं, ये तो संविधान है सर। आप क्या बात कर रहे हो? ये क्या मस्जिद में छुपा संविधान ये तो कहता क्या? है, ये एक संविधान सेकंड, कहता है कि किसी धर्म के बारे में जाके मस्जिद या मंदिर के अंदर मारने की बात कहता है क्या? अरे पूरा ये दारूवाला जी जो ये बोल रहे संविधान सुनिए ना। कहता है क्या? अगर आरोपी सुनो ना, एक सेकेंड, अगर आरोपी अगर मंदिर मस्जिद अगर गुरुद्वारे में छुपेगा तो क्या उसको क्या माफी देंगे क्या आप? हाँ, या फिर मारेगा? रिलीजन को ये आप क्या नितेश राणे जाके मारेंगे? ये नितेश राणे मारेंगे? बिल्कुल, ये मुसलमान लोगों ने कितने हिंदुओं की हत्या की है, कलकत्ता में कितने बड़े शोभान किया था, वो आप क्या भूल गए? कानून की धज्जियां उड़ाना जानते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाने की बात करते हैं। ये बताइए कि नितेश राणे कौन होते हैं जाके मारने वाले? हाँ, मैं मुसलमान इसके लिए कानून है ना? समर्थन कर रहा हूँ, अरे भैया, मैं समर्थन कर रहा हूँ सर, आप कान खोल के हमारे सुन लीजिए। हमारे कश्मीर के अंदर हमारे अरे हिंदू भाई, पंडितों को समर्थन मार करने मार मैं के तो आपका निकाला, धन्यवाद उसका भी देता हूँ समर्थन कि तुम्हारे आप जैसे अब्दुल्ला ने प्रवक्ता किया, पार्टी के होने तुम्हारे चाहिए, कांग्रेस ने आप किया। जैसे प्रवक्ता और पार्टी के पंडितों हो को ताकि प्रोटेक्शन पार्टी देने का काम नहीं इतनी किया। मजबूती से आप चार कांग्रेस वाले मजबूती मारने के वाले साथ हैं, गिरे। बचाने वाले नहीं हैं। आपकी ये बातों पूरी को दुनिया महाराष्ट्र जानती की है। जनता सुन रही है। और नितेश राणे कौन होते हैं? नितेश राणे कौन होते हैं? किसी को घर में या मस्जिद में या मंदिर में घुस के मारने वाले? फाइनल वर्ड मुकेश गांधी साहब, मुकेश गांधी साहब, फाइनल वर्ड भी है युवा मुझे। आक्रोश है, एक हिंदू का युवा आक्रोश है वो, और आप उसका एक आग समर्थन है। करते हैं, आप उसका समर्थन करते हैं। हाँ, तो उसमें क्या महाराष्ट्र की गलत हो जनता गया? सुन रही है, महाराष्ट्र की जनता अरे देख वो रही है, उन्होंने मस्जिद और में इसका जाके जवाब आवाज आपको जनता 2 को महीने में मारने की नितेश बात राणे की। को भी मिलेगा। अगर और आपको भी राणे मिलेगा। परिवार करता है और अभी तो दारूवाला आपको जी ने जो जलावा बताया हो वो रहा सही है। बताया है कि जो आतंकवादी कोई भी हिंदू होगा, मुसलमान होगा, वो मंदिर मस्जिद में भी घुस जाएगा तो उसको मारना चाहिए। वो बात भाषा राणे ने वो कही है। आप वो बात को अरे twist भाई, करके आप बात Okay, करो। gentlemen, that's the final word. दारूवाला साहब, thank you so much for being on the show. मुकेश गांधी साहब, thank you for being on the show.
Bharat Singh ji, thank you for being on the show. It has been a very enlightening discussion. Thank you very much, Bharat Singh ji. Bharat Singh ji, we are at the end. We have to end. We have to end. Thank you so much. Thank you so much, Mukesh Gandhi sahab. Thank you so much, Daruwala sahab. Thank you so much, Bharat Singh ji. It has been a fantastic discussion for more than 1 hour. And as we always end with the preamble to the Constitution, we say, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice is social, economic and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights. Liberty is freedom of speech, expression, faith, worship, belief, right to life, liberty and pursuit of happiness. Fraternity is eternal brotherhood, believing the territorial and political integrity of the nation. As we always say, please subscribe to the channel. Subscribe to Nation Now. That's the bell. That's the bell. Please subscribe to Nation Now. We are doing really very good. And as we say, it's the fundamental duty of all political parties to preserve the pillars of the Constitution. Make it safe and secure. Because the pillars of the Constitution are safe and secure. The Constitution survives, and if the Constitution survives, the Republic survives, we the people survive. That's all from Pradeep Nambiar Nation Now. We'll come again more with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.